everyone. Thank you for joining us for this session. Today, we will learn about the Neo Prime Fund, which is a Category 2 AIF. We are joined by two stalwarts, Mr. Hemant Daga, co-founder and CEO, Neo Asset Management, Mr. Manish Kadvi, CEO, Multifunds India Partner. We are delighted to have them with us to share their perspective on the Neo Prime Fund and the opportunities it may offer for partners and investors. So, without any further delay, let's begin. To start the session, I invite Mr. Manish to set the context and lead the discussion. Mr. Manish, over to you. Uh, Good afternoon, everybody. Thank you for being on this call. So, last year, as a business, as a company, we did about 7,500 crores of business net sales, of which 4,500 crores is alternates or AIFs and PMS and things like that. Right. So, I would say it's a great start to this journey. And one of our key partners last year or since the day we started going on this path has been Neo, which is very close to our heart, and we have built a great momentum with them, which we want to continue in this year as well. And the product that Hemant is going to talk about today is an extremely conservative, amazing product which gives you taste of three things in one basket. So I think so. Hemant will explain that product in detail, and trust me, you can't find a better speaker than Hemant. So please listen, please ask your questions. We'll try to answer them. At the end, also, what we will do is launch a new initiative for accredited investors, which is going to help all of us do bigger volume of business. So over to you, Hemant. Thank you for joining in, and thank you for taking time out to address our distributors. Over to you, Hemant. Thank you, Manish Bhai. Thank you, Funds India team. Welcome to all the partners online. It's indeed a pleasure for me to present this opportunity to you. ये इंडिया का एक नया कैटेगरी क्रिएट किया हमने नियो में, एंड दूसरा नया इनिशिएटिव है accredited investors, and I will give special thanks to Manish for pushing us to launch this initiative. But thank you once again. I think we are going to speak of two category creators today. And that is the opportunity that we want to partner with all of you in this forum on today's call. Neo Prime Fund. First, I just want to set the context. क्यों हमने ये फंड लॉन्च किया? Because अगर कोई नीड फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, right? This is a chart all of you understand very well. All of you have seen multiple times. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कोई भी एसेट क्लास कंसिस्टेंटली रिटर्न्स नहीं देता है. कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, कभी कंजर्वेटिव हाइब्रिड अच्छा करता है, कभी लार्ज कैप अच्छा करता है. बट वन ऑफ द थिंग्स आई फील ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच डज वेरी वेल इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. नेट रात में नींद देता है, अच्छे रिटर्न्स देता है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स देता है. तो अगर कभी आपको लग रहा है अच्छा ये मिस हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं पकड़ा गया, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट इज 3 years, 5 years, द ब्यूटी इज लॉन्ग इज नॉट ऑल्सो वेरी लॉन्ग. इट्स नॉट सेइंग कि अच्छा 5 साल तक रुको. 3 साल में ना इसकी आउट परफॉर्मेंस ओवर अदर कैटेगरीज स्टार्ट शाइनिंग. सो बेसिकली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, all of you understand the beauty, but I want to reiterate the beauty. 5-year CAGR. And why are we motivated by this? So obviously we are launching a category 2 fund, so it's not a mutual fund. But can a mutual fund say inspiration liya humne? We have taken the inspiration from mutual fund because this is one of my personal favorites as a fund allocation product. Now, if you look at it, multi-asset allocation funds in the mutual fund have done very well. Returns bhi tagde, risk bahut hi kam. And that is the beauty we have tried to capture in launching the Neo Prime Fund. And I am super happy to launch this in the Funds India platform with all the partners. This is India's first multi-asset private markets fund. So जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, इक्विटी का एलोकेशन होता है, ये एक्चुअली क्लाइंट्स को वही चीज प्राइवेट मार्केट्स में दे पाएगा. सो समटाइम्स यू गो एंड अप्रोच क्लाइंट्स, किसी को आप क्लाइंट को प्राइवेट क्रेडिट बोलते हो तो वो बोलता है अच्छा मुझे प्राइवेट क्रेडिट अच्छा लगता है बट पूरा नहीं करना है.
किसी को प्राइवेट इक्विटी बोलते हो तो उसको लगता है अच्छा थोड़ा प्राइवेट क्रेडिट हो जाए तो भी अच्छा है, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हो तो उसको लगता है नहीं थोड़ा ये भी मिल जाए. So basically, what we have tried to combine is the beauty of, we have been inspired by multi-asset allocation funds. म्यूचुअल फंड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है, इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, और आप लोग ने सबने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2-3 साल में. द ओनली कैटेगरी विच हैज परफॉर्म्ड इज मल्टी एसेट, बिकॉज क्या है ना, अपने आप ही एलोकेशन बदलते रहता है. And we have been inspired to launch India's first multi-asset private markets fund. तो आइडिया बहुत सिंपल है. प्राइवेट मार्केट्स में क्या क्या चीजें होती है? प्राइवेट क्रेडिट होता है, आप लोगों ने सुना होगा. लेट स्टेज प्राइवेट इक्विटी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और लिक्विड फंड्स भी होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें रिटर्न्स लिक्विड से फार बेटर होते हैं. We have tried to combine all of this in one fund to deliver the Neo Prime Fund. Returns भी अच्छे हैं, volatility lower होगी, and regular cash flows to clients. देखो सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कूपन भी आता रहेगा और रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे. And at the same time, risk is the lowest. As you have experienced, multi-asset allocation funds give you good returns, least risk. So our idea here also is to give you good returns. 18 से 20% बना के क्लाइंट्स को देना है, उसमें से सालाना 9 से 10% कूपन देना है. तो 9 to 10% will come to you as regular coupons from year 2, and 40 to 50 deals. The beauty is कि अगर कोई भी फंड में 50 डील्स हो जाए ना, तो उसकी रिस्क अपने आप बहुत नीचे हो जाती है. So without further ado, now obviously you have understood this category, because देखो सिंपल कैटेगरी, आपने म्यूचुअल फंड में इतने सक्सेसफुली क्लाइंट्स को दिया है, वही चीज यूनिक प्रोपोजिशन नियो इज गेटिंग टू क्लाइंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट मार्केट्स. तो जैसे मैंने बोला, एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है हमारा, और उसमें थोड़ी डायनामिसिटी होगी बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज. सो व्हाट दिस फंड इज ट्राइंग टू डू इज, देयर आर 4 एसेट क्लासेस. प्राइवेट क्रेडिट, वेयर यू आर गिविंग क्रेडिट टू कंपनीज, बट उसमें भी गार्डरेल्स है. कोई भी एसेट एलोकेशन फंड में गार्डरेल्स होने चाहिए, राइट? तो हमारा एक स्टैटिक एलोकेशन क्या है, 30 to 50% के रेंज में ही रहेंगे. हाँ, जब उसमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगेगी प्राइवेट इक्विटी में खाए तो 50% के आसपास जाएंगे. अब प्राइवेट इक्विटी क्या है, 20 to 30% एलोकेशन. रियल एसेट्स विच इज ऑल योर इन्वेट्स, रीट्स, ये 5 से 15. एंड अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड क्या है, things like corporate events, IPOs, open offer, mergers, buybacks. Now these sort of strategies are very unique because आपके clients अभी ये कोई भी म्यूचुअल फंड में कर नहीं पा रहे हैं, but through this fund they will be able to participate. So the uniqueness of this strategy, opportunistic liquid में नियो अपने clients को 10 से 20% देते आ रहा है लिक्विड फंड कैटेगरी में. तो हम लोग ने क्या किया, ये सबको एक जगह पैकेज कर दिया है. But the philosophy of Neo Asset Management remains intact. तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट की हमारी वही फिलॉसफी है, कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनीज, नो लॉस मेकिंग कंपनीज, एंड एवरीथिंग सिक्योर्ड. प्राइवेट इक्विटी, EBITDA पॉजिटिव कंपनीज, 3 से 4 से IPO कंपनीज विच आर लीडर्स इन देयर बिजनेस डोमेन. So we are abiding by our overall philosophy that we have set in the Neo ecosystem. The idea is, can I package this? And why can Neo do it and others not do it? Because ये बहुत important question आएगा सबके दिमाग में, right? And maybe I just want to spend one time on that. Why can Neo do this and not others? Because आज के दिन में, and थोड़े प्राइड के साथ, एज न्यू एसेट मैनेजमेंट वी आर पोटेंशियली वन ऑफ द ओनली फ्यू डोमेस्टिक एसेट मैनेजर्स विच हैज एवरीथिंग इन प्राइवेट मार्केट्स. प्राइवेट क्रेडिट का फंड है, प्राइवेट इक्विटी का फंड है, अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड का फंड है, लेट स्टेज प्राइवेट इक्विटी का फंड है. तो मेरे पास ना ये एक्सपीरियंस है, और मैं इस एक्सपीरियंस को अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपके थ्रू. सो बहुत सारे एसेट मैनेजर्स आज के दिन में इंडिया में ये कर ही नहीं सकते, बिकॉज किसी के पास सिर्फ प्राइवेट क्रेडिट है, किसी के पास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी के पास सिर्फ 2 ही एसेट क्लास है. दैट इज व्हाई दिस फंड इज सुपर यूनिक करंटली इन इंडिया, बिकॉज नियो हैज ऑल द कैपेबिलिटीज. तो हर एक फंड एक डील करता है, उसमें से नियो प्राइम बोलता है अच्छा मुझे ये डील दे दो, मैं अपनी बेस्ट पोर्टफोलियो क्लाइंट के लिए. ओके, सो इफेक्टिवली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज,
Neo Prime Fund will put money in all of these strategies. 40 से 50 डील्स हो गए, बैंड्स है, तो ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर को मन किया तो क्रेडिट 100%, नो, क्रेडिट में 30 to 50% का बैंड है। प्राइवेट इक्विटी अच्छा लगा तो ऐसा नहीं कि 100%, आई मीन स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई। एंड द ब्यूटी इज एवरी ईयर सालाना आपको 9 से 10% का कूपन भी मिलेगा। सो 18 to 20%, एंड दिस इज अ वेरी फेवरेट स्लाइड ऑफ माइन। मुझे क्या अच्छा लगता है, जब कोई भी स्ट्रेटेजी में रिटर्न्स के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, तो जब सोर्स अलग है ना तो डाइवर्सिफिकेशन है, और ऊपर से क्या है ना 50 डील्स है, तो एक तो रिस्क लो है, रिटर्न्स अच्छे हैं, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिली जिसमें क्लाइंट को कूपन भी मिल सकता है और अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बिकॉज टिपिकली प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने सिर्फ इक्विटी कर लिया तो कूपन नहीं मिलेगा। अभी 3 साल मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिया तो आपको लगेगा अरे मेरा तो 8% ब्याज तुमने दिया ही नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी में मार्केट में भी आपको ब्याज देगा और ओवरऑल रिटर्न्स भी अच्छे देगा। एंड आई थिंक फाइनली ना क्लाइंट्स को दोनों का मिक्सचर लगता तो है, उसको थोड़ा रेगुलर इनकम आए तो अच्छी फीलिंग लगती है, और ऑब्वियसली रिटर्न्स भी अच्छे ही होने चाहिए विथ लीस्ट रिस्क। सो दिस इज द ब्यूटी दैट वी आर एबल टू ऑफर दीज रिटर्न्स। एंड व्हाई इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द नियो एसेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम। हमने ये एक इकोसिस्टम बनाया। मेरे पास आज ये सारे स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। बिकॉज दे आर अप एंड रनिंग, I can offer a Neo Prime Fund, and those strategies already have a track record. So हम लोग कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे। जो डील्स वो स्ट्रेटेजी करेगी उसी डील को मैं आपको इस Neo Prime Fund में दूंगा। So for example, this is our track record. हाई यील्ड क्रेडिट में हमारा जो एग्जिस्टिंग फंड है 23% दे रहा है। परफॉर्मिंग क्रेडिट में जो हमारा एग्जिस्टिंग फंड है 15.5% दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो 21% दे रही है। अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड में मेरी स्ट्रेटेजी 15% है, और लिक्विड में मैं 15% रिटर्न दे रहा हूं। अब इसी को मैं पैकेज करके दे रहा हूं, तो मैं एग्जिस्टिंग रिटर्न्स को पैकेज, दिस इज अ ट्रैक रिकॉर्ड, एंड विच इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस फंड आफ्टर नियो एसेट मैनेजमेंट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 4.5 years. We did not launch it on day one. 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, सारे फंड्स की स्ट्रेटेजी है, सारे फंड्स अप एंड रनिंग है। तभी हमने जाके बोला अच्छा अभी राइट टाइम है क्लाइंट को एक सुपर यूनिक प्रोपोजिशन देने का। एंड believe me, this idea came from one of our clients. I clearly remember I was sitting with a client, और उसने बोला हेमंत आप आते हो, कभी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हो, कभी परफॉर्मिंग क्रेडिट बोलते हो, कभी ऐसे प्राइवेट इक्विटी बोलते हो, आप एक काम करो ना, आप एक साथ ही मेरे को सारा दे दो। उससे क्या है, मेरा रिस्क बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा, ऐसे 50 रो आइटम नहीं आएंगे, साथ में टैक्स भर दूंगा, लाइफ मेरी इजी, तुम्हारी भी इजी। तो बेसिकली वी वर सुपर मोटिवेटेड। और जब मैंने मनीष से बात किया, आई स्पोक टू मनीष, मनीष लाइक द आइडिया, ही सेड हेमंत दिस इज वेरी यूनिक, लेट अस शोकेस इट टू आवर पार्टनर्स। सो द आइडिया इज launch a multi-asset allocation fund. And the beautiful thing is that the income streams are very diverse. तो क्रेडिट से आपको ब्याज भी आएगा, अच्छे रिटर्न्स आएंगे, प्राइवेट इक्विटी से ग्रोथ रिटर्न्स आएंगे, और इनविट से आपको रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे और साथ में कूपन भी मिलते रहेगा। And see how are we doing these deals? So the fund manager of the Neo Prime Fund, Saloni, could not join us on the call today. बट वॉट इज शी डूइंग? बेसिकली वो जाके बोलती है अच्छा नियो का एग्जिस्टिंग फंड है परफॉर्मिंग क्रेडिट, जब वो डील करेगा उसी से मुझे डील मिलेगा। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कमिटी अप्रूव कर रही है वो डील, तो वो जाके परफॉर्मिंग क्रेडिट का डील देखती है, उससे चूज करती है, स्पेशल सिट्स क्रेडिट का डील देखती है, वहां से निकालती है। एक साल में ये सारे फंड्स नियो में कम से कम 70-80 डील कर रहे हैं। अब उसमें से सलोनी अपने स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में चूज करेगी कि अच्छा ये डील मैं ले लेती हूँ, ये डील मैं छोड़ देती हूँ। तो शी इज एक्चुअली इन अ वे पिगी राइडिंग ऑन द नियो इकोसिस्टम इन चेरी पिकिंग द बेस्ट डील्स। एंड व्हाट वी हैव डन वेरी क्लियरली is from a governance perspective, all the deals will be on the same terms in the Neo Prime Fund. कोई भी डील कोई अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं रहेगा, बिकॉज एवरी क्लाइंट इज equal in the eyes of Neo. So all the funds, all the deals will be exactly identical. And the other thing Neo has done, this is the super speciality, maybe ये पहले फंड के दूसरे फंड से पॉसिबल भी नहीं होगा करना।
So we are trying to raise 1,000 crore funds, 1,000 crore AUM fund, friends. उसमें से पिछले 3 महीने में 600 करोड़ आ गया है, 400 करोड़ ही बचा है. There is a lot of demand for this. What Neo as a group has done, क्योंकि हमको पहले बार लॉन्च कर रहे हैं तो इनोवेटिव है, तो क्लाइंट्स को बहुत सारे स्वीटनर्स मिलते हैं जब कोई कैटेगरी स्वीट. वी हैव आल्सो कमिटेड लिक्विडिटी. और जब मैंने मनीष को सबसे पहली बार ये बोला कि मनीष 1,000 करोड़ के फंड में यूं लिक्विडिटी दे रहा है, तो समझिए आपके किसी क्लाइंट ने इस फंड में इन्वेस्ट किया. ऑब्वियसली दिस इज अ क्लोज्ड एंडेड कैटेगरी 2 फंड, 6.5 years, राइट. और बीच में उसको लगा कि नहीं, मुझे ना लिक्विडिटी चाहिए, मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि ठीक है लाइफ में कोई नीड आ गई, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे इस फंड से निकलना है. तो नियो will endeavor to provide liquidity on a first come first serve basis to all investors. So assume करिए कोई इन्वेस्टर आता है 5 करोड़ का एग्जिट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द 3rd year, एंड 5 करोड़ ही है, तो हमने तो 50 करोड़ का विंडो ओपन किया है, राइट. नाउ इफ ही आस्क्स फॉर लिक्विडिटी एंड ओनली 5 crores, then he will get the full liquidity. If people ask for 100 crores, क्योंकि हमने उस क्वार्टर में 50 करोड़ ही प्रोवाइड किया है, सो टेक्निकली क्या होगा, सबको आधा आधा मिल जाएगा प्रो रेटा बेसिस पे. एंड दिस लिक्विडिटी फीचर कंटिन्यूज फॉर 3 years. So it is a beautiful option for clients, and this is the sweetener because we are launching something very unique for the first time. We wanted to give people more comfort कि आओ इसको embrace करो, because जैसे म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने मल्टी एसेट embrace किया, this is like a pioneering moment in private markets. मुझे लगता है ये कैटेगरी अगले मतलब 5 साल 10 साल में मुझे लगता है सबसे बड़ी कैटेगरी बन सकती है प्राइवेट मार्केट्स में, बिकॉज एक इन्वेस्टर क्यों दिमाग लगाए सारे अपॉर्चुनिटीज पे अगर उसको सब कुछ एक पैकेज में मिल जाए. सो बेसिकली आइडिया इज सिंपल, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. व्हाई कैन नियो डू इट? बिकॉज नियो में ये सारी अपॉर्चुनिटीज है. मेरे पास एक लेट स्टेज प्राइवेट इक्विटी फंड भी है, मेरे पास अपॉर्चुनिस्टिक फंड भी है, मेरे पास हाई यील्ड भी है, परफॉर्मिंग भी है, बहुत कम एसेट मैनेजर्स, बहुत कम म्यूचुअल फंड्स, बहुत कम लोगों के पास प्राइवेट मार्केट में ये सोल्यूशन है. और ये हमारे एक्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड्स है. सो एक्चुअली अगर आप देखो अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड, टेक्निकली अगर कोई क्लाइंट लिक्विड फंड में पैसे डाले तो वो तो खुद 6% कमाएगा, बट नियो के प्लेटफॉर्म में उसको 15% कमाने का चांस मिल रहा है इसी फंड के थ्रू. वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज मैं नियो की प्लेटफॉर्म को क्लाइंट को पूरा खोल रहा हूं कि नियो की प्लेटफॉर्म का फायदा लो, और वो पैसा एक्चुअली 15% कमा रहा है इस फंड में. अब जैसे इनविट है, कोई इनविट्स में क्लाइंट्स को पहले समझ में नहीं आता, इसमें डालूं उसमें डालूं, कहीं उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे एक्सेस मिलेगा. तो मेरी ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे क्लाइंट्स को वी आर ऑफरिंग दिस प्रोपोजिशन विद लिक्विडिटी. I'm going to skip these slides. Obviously, we have a phenomenal team, people with a lot of experience. And this is the beauty that we are packaging all of this together. वो बोलते हैं ना कि विटामिन ए लेना है, विटामिन ई लेना है, विटामिन डी लेना है, मल्टीविटामिन ले लो, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा. तो एक्चुअली मैं तो लोगों को बोलता हूँ नियो प्राइम फंड ना एक्चुअली मल्टीविटामिन टैबलेट की तरह है. वन शॉट में आपको सब कुछ मिल सकता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड. We had launched this fund in January, as I said, 600 करोड़ हो गया. And proof of the pudding lies in performance, because performance को छोड़ के तो कुछ भी proof of the pudding है ही नहीं. सबसे अच्छी चीज क्या है? मनीष मेरे को हमेशा बोलता है, हेमंत लोग ना फंड्स लॉन्च करते हैं, पैसे लेते ही नहीं है, पैसे काम पे लगाते ही नहीं है. हमने 55% ड्रॉडाउन ले लिया है. ड्रॉडाउन का आपका मतलब सबको समझ में आता है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेते हैं. They have already taken 55% of the drawdown in 3 months. 14 investments, 14 investments have been done. In 3 months, to do 14 investments in a closed-ended fund is a remarkable achievement and very diversified portfolio. You see the pie graph. 5 high yield क्रेडिट डील्स किए है, 2 परफॉर्मिंग क्रेडिट, 1 प्राइवेट इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी में 3 डील्स किए है, रीट इनविट में डील किया है. तो बेसिकली जो मैं बोल रहा था, जिस अप्रोच से हम लोग इसको ट्राई कर रहे थे, उसी तरीके के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आपकी आंखों के. तो 3 महीने में 14 डील्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट 14 का क्या है? सुपर डाइवर्सिफाइड. और जो पाइग्राफ आप लोग देख रहे हो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, ताकि रिस्क मिनिमल हो जाए.
एंड लुक एट दीज डील्स, सब कुछ अलग 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 जोन में हुआ है। 14 डील्स में 2 एग्जिट भी हो चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज व्हाट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस. Exit is the final barometer of success. If you look at this is our exited portfolio and we are driving returns through active management. तो एक तो आपको मैंने समझाया, एक स्टैटिक एलोकेशन है, राइट, कि प्राइवेट क्रेडिट 30 से 50% करेंगे, प्राइवेट इक्विटी 20 से 30% करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर 5 से 15% करेंगे. बट देखिए, क्योंकि मैंने अगर कोई चीज सस्ते में ली और चीज भाग गया, तो मैं फास्ट उसको एग्जिट करके वो रिटर्न्स को एनकैश करने की कोशिश भी करता हूँ. वो हिंदी में बोलते हैं ना कि कुछ कुछ रिटर्न्स को अगर बुक करो तो वो गुल्लक की तरह जमा होते रहता है, वो आपको बफर बनाता है पोर्टफोलियो में. सो द फंड मैनेजर इन 3 months 14 transactions done, and these are crazy returns. 60% IRR, 39% IRR, 200% IRR. इससे क्या हो रहा है ना, बफर बन रहा है, बिकॉज ये सारे प्रॉफिट्स बुक भी हो रहे हैं और आपकी पोर्टफोलियो लंबा चल भी रही है. So I will give a lot of credit. What is this doing is it's creating buffer. By booking profits, it constantly creates buffer that the end returns will be actually very similar to what we are promising. क्योंकि हमेशा लंबे ड्यूरेशन के फंड में ना आदमी को लगता है ये तो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है, बट हम प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं अगर बहुत जल्दी हमारे रिटर्न्स बन गए उसमें, राइट. एंड ऑब्वियसली हेल्दी पाइपलाइन. व्हाई इज इट पॉसिबल? बिकॉज नियो का प्लेटफॉर्म है. नियो के प्लेटफॉर्म में ये सारे डील्स चल रहे हैं आज के दिन में. सो टेक्निकली इस फंड के पास सबका एक्सेस है. इट कैन चेरी पिक, मुझे ये डील करना है, मुझे ये डील नहीं करना है. अच्छा, अभी इक्विटी मार्केट खराब लग रहा है तो प्राइवेट इक्विटी कम कर दो. और आप देखो लास्ट 3 महीने में सबसे ब्यूटीफुल चीज मैं बोलूंगा, ये फंड 3 महीने पहले लॉन्च हुआ, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू द फंड मैनेजर सलोनी. शी हैज ओनली डन 1 प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शन. मार्केट वॉलेटाइल था, सब कुछ ब्याज में लगाया, एकदम सिंपल, सब कुछ ब्याज में लगाया. तो क्या हुआ, शांतिपूर्वक ब्याज बन गया. अब मार्केट अगर अपने को सस्ता मिल रहा है तो वो धीरे धीरे इक्विटी में जाने की कोशिश कर रही है, जो आप डील नंबर 12 में देख पा रहे हो, राइट. सो सारी स्ट्रेटेजीज बेस्ट. नियो प्राइम इज इफेक्टिवली द बेस्ट ऑफ नियो. और जैसे मैंने आपको बोला, मल्टी विटामिन टैबलेट ले रहे हो थ्रू प्राइवेट मार्केट्स. अच्छी चीज क्या है, रिटर्न्स भी 18 से 20% बन सकते हैं. सो गुड हेल्दी रिटर्न्स, 40 से 50 ट्रांजैक्शंस, सुपर डाइवर्सिफाइड. ऑब्वियसली वेरी स्मॉल ऑफरिंग. वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ पायनियरिंग कैटेगरी. मैं भी कैटेगरी 2 में पहले 1000 करोड़ से ही ट्राई किया, और इसमें नियो का बहुत स्किन इन द गेम है. मैं तीसरे चौथे 5वें साल में आपको लिक्विडिटी देने के लिए भी रेडी हूं. तो आप सोचिए मेरी कंफर्ट कितनी है स्ट्रेटेजी में, कि मैं बोल रहा हूं अच्छा चलो आपको एग्जिट चाहिए ना, मैं आपको लिक्विडिटी दूंगा. सो व्हाट वी आर सेइंग, वेरी वेरी सिंपल. कैटेगरी 2 AIF, 6.5 years इज द फंड लाइफ. 3 साल बीत चुके हैं, बट ऑब्वियसली 6.5 साल तो पेपर पे होता है. एक्चुअली इट विल बिहेव लाइक 4.5 years. व्हाई? बिकॉज मैं आपसे पैसे इंस्टॉलमेंट में लूंगा और 4 साल के बाद आपको पैसे लौटाने लगूंगा. तो जब इंस्टॉलमेंट में पैसे लूंगा और इंस्टॉलमेंट में पैसे लौटाने लगूंगा, सो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 55% ड्रॉडाउन, राइट. नाउ द बैलेंस ड्रॉडाउन वी विल टेक ओवर द कोर्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट या ड्रॉडाउन जो भी बोलते हैं, ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 6 to 9 months. And after 4 years, basically after 4 years, we will start returning the principal back to you. So basically what we are trying to say is कि actually 4.5 साल की तरह बिहेव करेगा, आपको प्राइवेट मार्केट्स एक साथ मिल जाएंगे. और इसकी ब्यूटी क्या है ना, लोग बोलते हैं कि देखो हमारे जो सारे क्लाइंट्स है ना वो म्यूचुअल फंड्स में ही एक्सपोज्ड है. और कभी कभी क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड्स आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन देता है. मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, बल्ला अच्छा चल रहा है, पैसे बन गए. मार्केट नीचे गया तो आंसर क्या है, मार्केट. बट इसमें क्या है ना, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको 9 से 10% कूपन तो दूंगा ही, और साल में 18 से 20% IRR भी दूंगा, मतलब इट इज इंक्लूडेड. बट इफेक्टिवली इट इज सो डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड. दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू अ म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी. तो क्लाइंट की पोर्टफोलियो में ये जितना वैल्यू एड करेगा ना, और मुझे नहीं पता आज के दिन में कोई भी एसेट मैनेजर इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है. तो जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, आप जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर सकते हो उसकी पोर्टफोलियो में.
बिकॉज उसको म्यूचुअल फंड से कोई अलग ही चीज मिलेगा, और क्या है, हैप्पीनेस भी मिलेगा, बिकॉज क्या है, साल का 9 से 10% कूपन तो आता रहेगा। तो ऐसा हुआ कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट नहीं हिल रहा है, इक्विटी में प्रॉब्लम है, तो भी उसको 9 से 10% उसके बैंक अकाउंट में आएगा ना, तो उसको संतुष्टि मिलेगी। So idea is very simple. This is India's first multi-asset private markets fund, and I am super happy to present it today to all of you, to showcase it in the Funds India channel. And the other new thing that we have done, thanks to Manish Bhai, this is the actual performance of the portfolio. These are our actual deals. So if you see, the IRRs are super healthy. The returns are looking very good. Touch wood. These are our exited deals looking very good. So actual performance है, actual strategy है, कुछ भी हवा नहीं है. We are not talking that हम ये करेंगे, ये already कर चुके हैं, इसमें ये returns already है. और आज जो client आएगा उसको 4-4.5% NAV का फायदा भी मिलेगा, बिकॉज NAV ऑलरेडी ऊपर है. लास्ट 3 महीने में 4-4.5% NAV आपको फ्री में मिलेगा. This is another big initiative. Manish Bhai, thank you for you to pushing us at Neo to launch this initiative. And I will request Manish Bhai only to talk about this initiative, because idea unka hai. I think he deserves to speak on this initiative with all the partners. Yeah, thanks, Hemant. एक लेसर नोन चीज है जो रेगुलेटरी एक विंडो है, which is called the accredited investor, right? उसके 3 criteria है, and we'll see them in the next slide. But if you become an accredited investor, you basically can invest, instead of 1 crore, 25 lakhs in an AIF, and instead of 50 lakhs in a PMS, about 12.5 lakhs in a PMS. और हम सब पार्टनर्स के पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 1-2 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में है, एंड दे आर अफ्रेड ऑफ पुटिंग दैट 1 crore चेक इन वन प्रोडक्ट. तो मैंने और हेमंत ने ये सोचा कि हाउ डू वी ब्रिंग मोर कस्टमर्स टू दिस प्रोडक्ट. वो कन्विक्शन के बाद तो पूरा पैसा इधर आएगा ही, बट हाउ डू यू गिव देम अ टेस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट एट अ लोअर टिकट साइज, एंड दिस इज अ ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू अस. तो इसका एक प्रोसेस है. 10,000 रुपया की फीस है पर इन्वेस्टर, which very thankful to Hemant that they have agreed to bear. So we want, first of all, मुझे लग रहा है ये जो 500 लोग हैं वो पार्टनर्स ही होने चाहिए. So most of our partners are themselves eligible for becoming an accredited investor, और वो पार्टनर खुद ये सर्टिफिकेट मिलेगा. पार्टनर themselves should invest in this product. देखो, SIP तभी बेच पाए जब आपने खुद की SIP की. उसी तरह अल्टरनेट्स में आपका 100-200 करोड़ AUM तभी होगा जब आपका खुद का एक्सपोजर होगा अल्टरनेट्स में या फिर AIFs, राइट. सो वी वांट दिस टू ऑल ऑफ यू टू बेनिफिट फ्रॉम दिस. इफ यू हैव कस्टमर्स who are eligible, we will see whether we can extend that to your customers as well. But right now we have 500 people sanctioned from Neo, Hemant, and that's what we should get them done. So we can go to the next slide, please. Yes. So this is how if you have one of these conditions, you are eligible to become an accredited investor. So if your annual income is greater than 2 crores, your Form 16 or ITR, if it contains greater than 2 crores, you are eligible. The second condition is your income is greater than 1 crore, but you have assets worth of 5 crores, of which financial assets are 2.5 crores. Then you are eligible. And the third condition is you have assets worth 7.5 lakh crores, of which financial assets are 3.75 crores. So अगर आपके DP में समझो 3.75 crores के स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, तो वो एलिजिबल है. अगर 2.5 करोड़ म्यूचुअल फंड में बॉम्बे में के मेट्रो में, तो वो एलिजिबल है. और अगर 2 करोड़ के ऊपर की एनुअल इनकम है तो वो एलिजिबल है. और this goes beyond individuals, it can go to trusts and it can go to body corporates also, but we are more interested in individuals rather than those categories. Can we go to the next slide? So ये जो कस्टमर डेटा जो भी एलिजिबल है वो
collect करके we have to share it with the Neo team. And what we will do is basically you need 4 documents. So we'll send you a separate checklist and a sample of those documents in the through our teams. So 4 document चाहिए, वो document will send it to Neo. Neo will upload those documents on the so ये accreditation is done by CVL, CDSL का एक आर्म है, और वहां पे जनरली वो 4-5 दिन में हो जाता है एक कस्टमर को OTP पैन वेरिफिकेशन के लिए. That's it, right? And it will come in the next 5-6 working days. So once we receive that certificate, when your application will go for 50 lakhs in Neo Prime AIF, it will be accepted because that you are an accredited investor now. So ये steps हैं, बहुत simple है. कस्टमर को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और वो नियो को भेजने हैं, और एक OTP आएगा कस्टमर को, वो उसको शेयर करना पड़ेगा टू वेरीफाई द पैन. So again, thank you to Hemant. 50 lakhs is a very big amount for you to spend with us, and we'll try to finish this number as soon as possible. And what that should lead to is that we give people a taste of AIF, and there cannot be a better product. Let's say जिंदगी में कोई पहली बार AIF में पैसे लगा रहा है, right? I think so. प्राइम से बेटर कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि प्राइम में प्राइवेट क्रेडिट है, अनलिस्टेड इक्विटीज है, रियल एस्टेट है, कूपन है 9% का. सो इससे बेटर कैटेगरी नहीं हो सकती टू स्टार्ट somebody's journey on AIFs and alternate. So again, we should take the benefit for this and take this to as many people as we can. And if we see results, we will extend this from 500 to more people going forward. So thank you, Hemant, for giving us this support. And over to you. No, our pleasure. I think Manish, thank you to you. अब मुझे क्यों thank you बोल रहे हो? But मुझे लगता है बहुत लोगों तक प्राइवेट मार्केट्स और AIF पहुंचाया जा सकता है. हम लोग अपनी तरफ से एक छोटी चीज कर रहे हैं कि अक्रेडिटेड बनने का जो खर्चा है 10,000 रुपया, वी आर नॉट आस्किंग पार्टनर्स, दैट नियो विल पे. और 25 लाख, जब भी कोई चीज नया हो, जैसे 20 साल पहले जब म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आए थे, तो बहुत लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, बट जिन लोगों ने किया वो बहुत आगे चले गए उससे, राइट? वन ऑफ द लेजेंड्स आई रिस्पेक्ट, मिस्टर नरेन, एंड मुझे लग रहा है आज नियो में वो अपॉर्चुनिटी की प्राइवेट मार्केट्स का सबसे पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च करे. और क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज नियो में ये कैपेबिलिटी है. मैं क्रेडिट भी करता हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी करता हूँ, अपॉर्चुनिस्टिक, लिक्विड, इनविट सब कुछ करता हूँ, और चलो 25 लाख पे ट्राई करते हैं. जैसे मनीष ने बोला, अच्छा चलो 2.5 करोड़ है मेरी पोर्टफोलियो में, मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है 1 करोड़ के फंड में, बिकॉज इसकी लगता है, राइट, दुख होता है थोड़ा. पर आप 25 लाख के साथ तो आदमी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और उसमें सालाना 9 से 10% कूपन मिले तो फिर क्या खराबी, राइट? और प्रूफ ऑफ द पुडिंग दिख रहा है ना, क्योंकि 4 महीने में मैंने 14 डील्स किए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि हवा में बोल रहा हूँ. आपको प्रूफ ऑफ द पुडिंग दिख रही है. मैंने 4 एग्जिट भी कर दिए, आपको IRR भी आपकी आंखों के सामने दिख रहा है. तो वी आर शोकेसिंग अ स्ट्रेटजी विच इज टाइम टेस्टेड, एंड आपको 3 से 4% NAV बेनिफिट भी मिलेगा, बिकॉज NAV ऊपर जा चुकी है, और उसका बेनिफिट अभी जो इन्वेस्टर्स है वो अभी आ रहे हैं, उनको वो बेनिफिट भी मिलेगा. विद दैट आई विल पॉज. इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी एक्चुअली. आई एम श्योर. One question is the IRRs, have you mentioned these are pre-fees, right? What is the post-fee IRR to the investor? Post-fee pre-tax. Sure, I'll tell that. तो मनीष भाई, पोस्ट फी प्री टैक्स, बिकॉज फीस 2.25% रहेगा और कैरी रहेगा 15%, विच इज द परफॉर्मेंस फी. तो अगर हमने 20% डिलीवर किया तो आप पकड़ लीजिए 16.5 to 16.75 will be the pre-tax returns for clients. So pre-tax return, post fees pre-tax will be 16.5 से 16.25% के आसपास. These are very healthy returns because it is also tax efficient. आधा टैक्स कैपिटल गेन्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और आधा टैक्स आपका इंटरेस्ट इनकम लगेगा. तो पकड़ लीजिए 16.75 अगर हमने बनाया या 16.5 बनाया हमने, और उस पे आपने ब्लेंडेड टैक्स मिला के 20-22% दे दिया, तो नेट पोस्ट टैक्स से 13.5% का प्रोडक्ट है. प्री टैक्स 16.5 से 16.25. So 16.5 to 16.75% pre-tax post expenses, and close to 13 to 13.5%
पोस्ट एक्सपेंसेस। ब्यूटी क्या है ना, म्यूचुअल फंड से पूरा अलग है, बिकॉज आपकी पूरी पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड में है ना, तो वो डायरेक्शन से एक्सपोज्ड है। इसमें आपको कूपन भी मिलेगा और आपको प्राइवेट मार्केट्स का एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो सारे पार्टनर्स को एम्ब्रेस करना चाहिए फॉर द फ्यूचर। No, I think so. Most investors, so not just partners, right? Most investors in India, like if you ask 10 people on the road in Bombay, कि भाई डेट में कितना रिटर्न आ सकता है, तो आंसर लोगों का आता है 7-8%, बिकॉज एफडी डेट फंड्स में 7-8% के ऊपर। तो समटाइम्स people don't know that in private markets you can get these kind of returns in a debt instrument. B is ke mutual fund investors by default means they have zero exposure to unlisted equities, right? So this product actually, if somebody has, let's say, 2 crore rupees, and if you put, let's say, 1 crore here or 50 lakhs here from a crore, it's actually increasing your returns. It's giving you a debt exposure. It's giving you exposure to unlisted equities, which has nothing to do with the remaining mutual fund portfolio. कोई overlap नहीं है, कोई connection नहीं है, और ये multi asset है, right? तो इसका volatility कम है और 9% कूपन है. I think so, like I said, I mean, the first product any person who is buying AIFs for the first time should be Neo Prime. Yeah. और मनीष भाई एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा। आपने बोला कि देखो क्रेडिट में आप लोग देखो, सब लोग ये वाला कॉलम पे फोकस करिए, परफॉर्मिंग क्रेडिट। ये ब्याज का डील है, क्रेडिट 20 करोड़ डील किया इस फंड ने, 14% पे डील किया मनीष भाई, और 2 महीने में उसको 10.25% पे बेच भी दिया। सो नेट आवर IRR was 61% in this transaction. In less than 2 months, 7% was made on a credit instrument. And this was at a time when markets were down 20%. So in the last 3 months, when market was down 20%, this single instrument made 7% in that period. And that is the beauty. तो जब बहुत खराब थी दुनिया, तब भी ये फंड ने रिटर्न्स अच्छे डिलीवर किए हैं क्लाइंट्स के लिए। I think with that, Manish bhai, I'll now pause. Devina, See, on the call. Do we have any more questions? Partners, there is one window in the right hand side comment section. If you have any questions, please type in and ask. Yeah. So accreditation, I think so. It's not. I mean, Farhan is asking that whether both self and spouse are considered. I think so, Farhad. I mean, those criteria apply individually because the certificate will come in individual names. So if you have papers for both, yeah, they'll both be considered. Yes. Yes, conditions apply individually, Manish bhai. Yeah. How does regular cash flow work? Accreditation process पूरा डिजिटल है, तो कोई फिजिकल का लिखना नहीं है। स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेजो, 4 दिन में हो जाएगा, और 10,000 रुपया आपका खर्चा भी नहीं हो रहा है, वो नियो खर्चा ले रहा है, बिकॉज वी वांट टू बी द पायनियर्स ऑफ accreditation process also. Correct. Yes, Manish bhai, next question please. Is asking how does regular cash flow work? So do we have something on that? Good question, Anisha. तो जैसे मैंने दिखाया दूसरे साल के बिगनिंग से, so जैसे this fund was launched in January, so starting next year January, 9 से 10% coupon will be paid to clients. So approximately every quarter 2 to 2.5% will be paid to clients starting next year. So annual coupons will be 9 to 10%, which is much better than FDs. And our idea at Neo always is कि मैं FD plus experience कैसे दूं clients को, तो 10% कूपन भी दिया और अच्छे रिटर्न्स भी दिए। तो कूपन्स अनीशा विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जनवरी, 2 से 2.5% हर क्वार्टर में आएगा, तो वो अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भी आ रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं मुझे। करेक्ट। So what will be paid what quarterly, right, Hemant? मनीष भाई 2 से 2.5% क्वार्टरली आएगा, तो साल का आपका 9 से 10% चला जाएगा। और अभी ड्रॉडाउन अमाउंट क्या है? व्हाट इज द अमाउंट व्हिच इज करंटली ड्यू? 1%। सो इफ 25 lakhs पे आपको 55% देना है, व्हिच इज क्लोज टू 11.25 लाख रुपया।
So if somebody is investing 50 lakhs, 25, 26 lakhs is due today, right? Immediate. Correct. If somebody is investing 50 lakhs, correct. Right? Accredited investor. But if it is a normal investor, 1 crore rupees, then 55 lakhs is due today. And the remaining will be drawn down in the next 3 to 6 months. Conservatively, 6 to 9 months. 6 to 9 months. And the NAV today is what, the same? Approximately 4% के आसपास ऊपर है. 4% up है. The premium on it is already appreciated by 4%. तो वो फ्री मिल रहा है क्लाइंट्स को आज के दिन में. Okay. Can we have the presentation? Yes, Jagjit will send you the presentation. Any more questions? I think so. There are no new questions, Hemant. We've taken almost 50 minutes of time. We will share if people want the presentation. Last question, I think so. Farhad is asking, you exited some deals, you played clients or you reinvested? We will reinvest for the first 3 years for us. Because अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो मेरे क्लाइंट्स चाहते हैं कि उतना तो रीइन्वेस्ट कर दो. अगर मैं जैसे accredited इन्वेस्टर से 25 लाख रुपए लेने वाला हूँ, उसको वो पैसे वापस नहीं चाहिए. वो चाहेगा कि वो 18-20% रिटर्न बनाए इसमें. So yeah, Hemant, 2.25 on full investment amount. Yes, that's a fees that that's the investment management fees, Rakesh. Yes. Yeah, Hemant. Proof of the pudding है. मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है जब कोई भी फंड हाउस, एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू अबाउट नियो, आई थिंक एक्चुअल्स पे बात करना बहुत जरूरी चीज है. तो एक तो क्या है, एग्जिटेड डील्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे. दूसरा, आपको पोर्टफोलियो दिख रही है स्क्रीन पे, 14-12 डील ऑलरेडी है, एग्जिट्स हो चुके, पाइपलाइन दिख रहा है आपको, और एक्चुअली आपको नियो का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी दिख रहा है. तो बेसिकली ये चीज करके आ चुके हैं. अब इसको बस, ये एक्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड है अक्रॉस ईच ऑफ द स्ट्रेटजीज. अगर कोई इंडिविजुअल क्लाइंट पैकेज करके, जैसे मैंने कहा, एक मल्टीविटामिन टैबलेट की तरह 1 शॉट दे रहे हैं. ओके. एंड प्रॉफिट शेयरिंग 15% कैरी, वो भी आप एक लाइन में समझा. 10% के ऊपर ही, 10% बनाया तो ही लेंगे मनीष भाई, वो भी 10% के ऊपर ही लेंगे. सो अगर फंड ने 20% दिया, राइट? Yes. 20 minus 10, वो 10 पे हम 15%, which is 1.5%, right? Yes. And that is what I deducted. जब आपने मेरे को वो 16.5 पे we came to 16.5. 20% रिटर्न है, 2.25 फीस है, 1.5 प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, तो that's how we came to 16. Okay, cool. Will the investor or partner be informed on any entry or exit? Anisha, I didn't understand the question. What do you mean by that? Yes, every quarter there is a newsletter, Anisha. तो आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिटेल में मिलेगा, प्रॉपर न्यूज़लेटर आता है, प्लस देयर इज अ फंड मैनेजर कॉल एवरी क्वार्टर. वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे आएगी. उसके बाद अगर आपको पर्सनली अटेंड करने का मन है तो वो भी अटेंड कर सकते हो. प्लस नियो की टीम, फंड्स इंडिया की टीम, मनीष भाई की टीम, हम लोग हमेशा ऑलवेज एक्सेसिबल. Cool. Thank you, everybody. Thank you, Hemant, for being on this call. And let's get into the action mode. Let's get 500 people this accreditation certificate as soon as possible. And, we should, invest their money in Neo Prime. And if this, this is the first time we are experimenting with this. If this works, trust me, this is extremely scalable. India is a large country and there are hardly people who know about this. So we'll take this forward. If the income criteria for 1 crore is inclusive of ESOPs or capital gains as per ITR, would it? So ITR में होना चाहिए, नवीन, उसका इनकम ये है. ITR में होगा तो उसको कंसिडर करेंगे. But more questions we'll answer individually. इसका पूरा FAQ बना के भेज देंगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस तो FAQ से आंसर हो जाएंगे आपके. Thank you, everybody. Thank you, Hemant. Thank you, Manish bhai, for giving us this opportunity as always, and thank you, dear partners. Hope all of you participate in super large numbers. मनीष भाई ने अभी तो मेरे से सिर्फ 500 पार्टनर्स का ही रिक्वेस्ट किया है, तो हमने अभी एक बार 50 लाख रुपए अलग रखे हैं. But I'm hoping this will spread even more. Yeah. Thank you, Hemant. Thank you, everybody. Thank you.